Zakir. Hello everyone, I'm Mohammad Zakir Hussain, a third year undergraduate student in the Department of Mechanical Engineering. I'm contesting for each one of you who are part of this institute, who has been a part of this institute at a time, and who are going to be a part of this institute as a freshman next year. I'm contesting to work for you as head servant of all of you, that is General Secretary Hostel Affairs. Being Institute Secretary Hostel Affairs, I understand the weightage and importance of HA in the student's life. Thus, it is just for the students to gauge me on my past experiences and the work which I have done serving in various capacities. I have in the past served as the MESCO and Maintenance Secretary in the Hostel 16 and Hostel 5 respectively. Thus, I understand the micro level problems that a hostel inmate faces, like a small problem of flush not working to the PHO worker not adequately cleaning the student's room. Not only that, I understand the macro level issues during my current tenure as ISHA. Such as how unavailability of the adequate funds hurts the tube light supply, and how the estate office suffers from a lack of capable staff. Also, I got to know the notion which go into negotiation with the dean to resolve the problems, and how the administrative process of the smallest of the thing is carried upon. Based on these experiences, I bring reforms to improve the synergy between the isolated committees like MENCOM, MESCOM, via rolling committee to solve the issues related to the canteen licensing, waste scrap, etc. So I'm sure after seeing the three spheres of HA admin, I, Zakir, standing in front of you to represent you at the highest level and to provide for the ease of life to all of you, my friends, I am the best candidate. Before we move on, I would like to request you not to move in front of the camera. Next we have the opening statement of Rajesh. Hello everyone, I am Rajesh Thorve, a third year electrical undergraduate and the current maintenance counselor of Hostel 2. I have also worked as a maintenance secretary of Hostel 2 in my sophomore year. With a vision to bring transparency into the matters related to hostel affairs, to bring accountability into the system, and to resolve hostel affairs regarding problems like transportation and eateries. I am contesting for the post of General Secretary, Hostel Affairs. In my groundwork, I understood some of the major issues. In my groundwork, I have understood some of the current issues that students are facing, like conditions of the old hostels, problems regarding to transportation, sudden shutdown of multiple eateries, and functioning of CHMS messes. Overall, Hostel Affairs is a body which closely affects the day-to-day life of around 10,000 students residing in this campus, with a personal motive to bring in positive change regarding hostel affairs for the benefit of student community and a strong willingness to understand the functioning of various departments. I have decided to contest for this post. Like bi-monthly room cleaning. I am coming up with an idea of induction-based cooking in hostel canteens. This would be a feasible alternative and not a substitute to the original concept of canteens. Also, I am coming up with portable female toilets in senior hostels. I am taking a follow-up so that cycling on sloping terrace become easy. I am also pushing for initiating a private bus service on this campus. Also, at the last, not the least, I am also installing 24/7 LDAP-based printers in the hostels. Thank you everyone.
Ravi Shah. Okay, so move on to next topic. Manifesto debates. So all audience are requested कि जब candidate बोल रहा तो उसको interrupt ना करें. Guys, please do not interrupt the candidates while they are speaking. Thank you. You guys can start with the manifesto debate. Zakir, you can start with the first question. So Torbe, where do you propose to start a new eatery near New Sac? And what about the opening of so many eateries when there is even a space constraint to even open a new cycle shop near Hospital Z14? So Zakir, regarding your first question, location of health food outlet which I am proposing near New Sac, basically it will be a stall which can be set up inside the SAC ground floor. Okay, as confirmed with the relevant authority. Okay. Regarding the second question, with so many eateries, first of all, let me clarify that I am introducing a health food outlet, shipping containers in 3 locations, 12, 13, 14 instead of Amul Parlor. Okay. Second thing, near Hostel 4. Third, near physics parking lot. And also the fourth one near Hostel 15 as well. Okay. And okay, so you asked me about the locations. So I have told you regarding health food outlet, shipping containers. That will be a container like around 22 cross 8 feet area. Yeah. So ये container में 22 cross 8 feet square feet. Yeah. So 22 cross 8 square feet area होगा. ठीक है. बेसिकली कंटेनर कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है. कंटेनर का कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूँ. कंटेनर का कंसेप्ट क्या है? बेसिकली एक पोर्टेबल कंटेनर है जिसमें इमरजेंसी एग्जिट है, ठीक है. इमरजेंसी एग्जिट है, ओपनिंग है, ठीक है. उसके साथ साथ ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट है, ओपनिंग है, काउंटर है जिसमें सर्व करेंगे. तो बेसिकली एक पोर्टेबल ऐसी चीज़ जो मैं सेटअप कर रहा हूँ 12, 13, 14, ठीक है. 15 इसके साथ साथ तो स्पेस करें जिसमें लोगों को कभी लगता नहीं है. एग्जिस्टिंग तो जगह है लाइक कैंपस है एंड उसके साथ साथ आपने कैंपस है तो जगह तो आपको पता है क्या चल रहा है. तो ठीक है, मतलब आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Rajesh, can you please be a little loud? Okay. तो राजेश, जो तुमने लोकेशन बोली मेरा एनसी नाम इसमें मार्क कर और देख कि कितनी इतनी बनी है. अगेन मैं बता रहा हूँ, इतनी इनफ स्पेस अपने पास है. ये मैप है 3D में, इसमें पॉइंट टू पॉइंट मार्क करके देखो कि कुछ दिखने नहीं वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैप में मैं बताऊँ क्या कहाँ मार्क करूँ. बेसिकली आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर आई एम पुटिंग अप. जैसे आपको पता है, ठीक है. अमूल सेटअप पे सबसे पहले एंट्री है, ठीक है. दूसरी एंट्री है फिजिक्स पार्किंग लॉट, ठीक है. तीसरी एंट्री है जिसमें बोलो X15 एंड चौथी एंट्री है नियर एक्सपोर्ट, जो है एक्सपोर्ट का नेम प्लेट है उसके बाहर, मैट हाउस के जस्ट बाहर, ठीक है. जस्ट आस्किंग यू जस्ट पॉइंट इट कि कहां पर है. मैं बोल रहा हूं इतना छोटा सा मैप पे पॉइंट करके देखो इसको क्या ही दिखने वाला है. मुझे पॉइंट आउट करके देखेगा तो पॉइंट करके तो देख. करेंटली कैंपस पे एक लोकेशन का एंट्री है, कॉफी शैक एरिया में एंट्री है, हर हॉस्टल में कैंटीन है. मैंने जैसे ऑलरेडी प्रपोज कर रखा है कि अमूल पार्लर भी वर्किंग होगा, GNB वहीं पर है और एक यहाँ फूड ट्रक के अंदर सैक में है अंदर अभी फूड ट्रक चल रहे. कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है. वो विदिन अ वीक हो जाएगा. बट वो अंदर होगा विदिन अ वीक एंड एक सैक फूड कोर्ट भी है. तो इतनी सारी स्ट्रीट्रीज अंदर लाने का क्या कंसेप्ट है? मतलब यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आए कि खाने आए? तो
ये शायद ना बहुत ज्यादा एंट्रीज है। मुझे बताओ 12, 13, 14 वाले कहाँ पे खाएंगे अभी? कहाँ एंट्री है? अगर ग्राउंड वर्क किया होता तो पता होता कि हॉस्टल 14 में पेटू करके फूड ट्रक वहाँ खड़ा हुआ है और अभी करंट सिचुएशन है। अगर आपको प्रॉपर ग्राउंड वर्क किया होता तो मुझे पता होता। रिगार्डिंग द फूड ट्रक, तो जैसे मैं बोल रहा था, आपने अभी फूड ट्रक की बात करी है, ठीक है? तो पॉइंट है कि कितने टाइम से फूड ट्रक नहीं है यहाँ पे, एंड आपने कहा था कि लोग खाने आए कि क्या करने आए। पहली बार लोगों को बेसिक खाने की चीजें नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक है? इसीलिए हम प्रपोज कर रहा हूँ, ठीक है? एंड जो जगह मैं प्रपोज कर रहा हूँ, ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे कोई जगह है जहाँ पे परमिसिबल नहीं है। तो वो सारी जगह जहाँ मुझे परमिशन मिल रही है, आई एम प्रपोजिंग एन आउटलेट जिससे उस एरिया के जितने लोग हैं उनको वो केटर कर पाए, ठीक है? थैंक्स। Rajesh, you can ask. Guys, please. You can ask the next question, Rajesh. So Zakir, your manifesto doesn't mention anything about the transport issues going on campus. The only point you have mentioned in your manifesto regarding the transportation is increasing the number of e-shuttles. So do you think e-shuttles alone is a self-satisfactory solution for the transportation of around 10,000 plus institute students? Frankly speaking, no. As discussed in the HA Council, we will be having private buses in the campus. And currently, institute में traffic का काफी issue है. That's why I haven't proposed so many transport facilities that you have already proposed in your manifesto. तो करंट स्टेटस पता है आपको? करंट स्टेटस पता है? जो प्राइवेट बस सर्विस के रिगार्डिंग आप बोल रहे हो, उसका आपको करंट स्टेटस पता है क्या है? मैं currently ISHA हूँ, HA काउंसिल का पार्ट हूँ, तो तुम्हें डाउनलोड करके हमसे पूछना है, तो मत बोल कि क्या तुझे पता है। We already have too many, we already मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं अपने दोस्त बने के लोग बैठे हो। so many meetings and हमने काफी सारी possibilities उसमें explore की थी। So the final conclusion is we will be outsourcing the buses. Do you know the exact proposal जो अभी प्रपोज है ट्रांसपोर्ट कमेटी के सामने? I have this proposal in front of me, ठीक है? इसके बारे में करंट अपडेट क्या है? आपने अभी मेंशन किया है कि बस सर्विस आप ला रहे हो, ठीक है? इन मतलब ई शटल्स के साथ साथ यही मैं पूछ रहा हूँ कि इस पे एग्जैक्ट अपडेट क्या है एंड क्या कंसर्न्स रेज किए गए? फर्स्ट ही डिसाइड हुआ था कि हम इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड बसेस अंदर लेकर आएंगे, बट द इशू वाज देयर वाज नो पार्किंग स्पेस कमर्शियल पार्किंग स्पेस अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। जो इनिशियली कंपनी के लिए यूज होती थी लोकेशन, वहां पर भी गौशाला है और ई शटल्स पार्क होती हैं और बाकी जितनी भी पार्किंग है वो इंस्टीट्यूट व्हीकल्स के लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम चीजें आउटसोर्स करेंगे। दिस वाज द फाइनल डिसीजन। करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस आई मीन कि वो प्रपोजल कहाँ तक पहुंचा है, क्या उसमें अपडेट है? आप जस्ट ये बोल के कटा रहे हो कि मतलब हाँ स्पेस क्रंच है, हम आउटसोर्स करेंगे। एग्जैक्ट स्टेटस तो बताओ भाई, कब आ रहा है, क्या आ रहा है, कितने बसेस आ रहे हैं, ठीक है? एक और जो एग्जैक्ट प्रपोजल है वो ये भी नहीं है। एग्जैक्ट प्रपोजल जो मेरे साथ में है, हॉस्टल्स को क्लब करके उनको प्राइवेट बसेस लाने का ये प्रपोजल है, ठीक है? व्हिच आई हैवंट मेंशन एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, तो करंट स्टेटस क्या है ये तो बताओ। आपने ये तो बोल दिया आप ISHA हो, इतना तो पढ़ लेते कम से कम प्रपोजल। As discussed with one of my HA councils, हमने ये रिजेक्ट किया था प्रपोजल। बेसिकली हमने डिस्कस किया था अगर हर गवर्नमेंट ऑफिस के पास बसेस होगी कैसे इंश्योर करेंगे कि उससे स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं एंड जो सिस्टम होगा वो काफ़ी हॉच पॉच हो जाएगा, इसलिए प्रपोजल रिजेक्ट किया था। पेपर राइट पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाने का प्लान था। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो आपने मेंशन किया कि आप फॉलो भी लेने वाले बस सर्विस पे खुद ही बोल रहे हो प्रपोजल रिजेक्टेड भी है, तो आपके पास अभी क्या ग्राउंड रियलिटी के बस है? मैं तो अपना प्लान लेकर बैठा हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में इतने बसेस आ रहा हूँ,
आपका प्लान कहाँ पे है? बस The reason why I haven't added buses in my manifesto is like मैं कोई break point नहीं लिखना चाहता था, just like exploring possibilities of e-rickshaw running in the campus. Just because of this I haven't added the bus. This doesn't mean that the buses and the transport facility is not in my mind. माइंड में होता तो लिख भी देते हैं। Rajesh, you're out of time. You're out of time. Zakir, you can ask the next question. भाई शाम आवाज से सुने तो कैंडिडेट्स की क्या बोल रहे हैं? Corey, my question is to you. How will you implement online mess inventory tracking system despite the adamant behavior of CHMS workers? बेसिकली तो आंसरिंग योर क्वेश्चन ऑनलाइन मैच इन्वेंटरी ट्रैकिंग का, आपको करंट सिस्टम पता है ना क्या होता है? करंट सिस्टम में जैसे वो रजिस्टर पे ट्रैक रखते हैं। ओके, तो सिंपली मैं उस प्रोसेस को ऑनलाइन करना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि उसमें बहुत बार डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के बाद ये रहेगा कि जैसे मतलब एक पोर्टल, बेसिकली पोर्टल पे वो देख रहे हैं कि डेली कितना वो यूज कर रहे हैं एंड कितना कितना उनको मंथली मिल रहा है। ठीक है, मतलब वो मतलब परचेज कर रहे हैं, तो इसका एग्जैक्ट ट्रैक वो मेंटेन करेंगे। एंड एज अ पार्ट ऑफ लाइक हॉस्टल काउंसिल अगर कोई जाता है वहाँ पे रेट भरने के लिए कि ओके उसको देखना है कि एग्जैक्ट अमाउंट आज कितना है, तो वो पोर्टल के थ्रू चेक कर सकता है कि ओके प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी सिस्टम में। काफी बेहतरीन कोट किया। वो करेंगे, कौन करेगा? हॉल मैनेजर, मैच वर्कर, मैच वर्कर, सीनियर मैनेजर, हॉस्टल मैनेजमेंट, मैच काउंसिल कौन करेगा? सर मैच मैनेजर करेगा। ठीक है, कुल अभी मेस वाले अगर उनके वर्क में वो रोज 4 ककड़ी काटते हैं ना, तो 5वीं ककड़ी काटने के लिए तैयार नहीं होते। अब तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एडिशनल वर्क लेंगे अंदर। हॉस्टल स्टोर का इशू था, वो अपनी कैंटीन अंदर स्टार्ट करवाना चाहते थे, तो अपनी इन्वेंट्री वो बाहर रख कर जाते हैं। बस रिक्वेस्ट की थी कि जो आप अंदर चीजें छोड़ के जा रहे हो बस प्रॉपर्ली कबर्ड में रखो, उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। एक्स्ट्रा रोटी बनाने के लिए तैयार नहीं होते, खत्म हो जाएगी। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेस मैनेजर्स ये भी करेंगे। इसका एक ही मतलब है कि आपकी कन्विंसिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आप ये चीज करने के लिए तो किसे कन्विंस करना चाहता है? इंडिविजुअल मैच मैनेजर को पकड़ के बोलेगा क्या कि मान लो सर कल से एंट्री कर दो। सिस्टम होता है, उनका वर्क, लेट मी लिसन टू मी, उनका वर्क डिफाइन होता है। सो तुम उनको क्या बोलने वाले? सर प्लीज रिक्वेस्ट कर दो सर एडिशनल काम ले लो। अभी वो वर्क लेट आते हैं, मतलब वार्डन्स डीन्स उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर प्लानिंग कि एक प्रॉपर कमेटी फॉर्म करी है, रूल्स वगैरह बनाने का प्लान है, कि वो बिल्कुल एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर सेइंग कि तू जाके अकेला कन्विंस कर लेगा उनको, जो कि इंस्टीट्यूट अथॉरिटी साथ में मिलकर पिछले 10-20 साल में नहीं कर पाई, वो तो अकेले कर लेगा। पॉइंट है आपने कमेटी का नाम लिया, अथॉरिटीज का नाम लिया, तो नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, बट जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उनके साथ बात करके ही ये पोर्टल मैंने आइडिएट किया है। ठीक है, पॉइंट है करंटली नीड है। ठीक है, करंटली नीड है कि जैसे ऑनलाइन अभी ट्रैक नहीं रखा जाता है, बेसिकली वो रजिस्टर पे लिखते हैं, उसी को मैं चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन लिखे, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, कोई भी जाके देख सके। आपको सिस्टम में गलती क्या लगती है बताओ मेरे को? नहीं चाहते क्या ट्रांसपेरेंसी बने रही सिस्टम में? तुझे पता नहीं कि सस्टेनेबिलिटी सेल्फ तुझे पता है ना कि सस्टेनेबिलिटी सेल्फ फूड वेस्टेज का डेटा ले रही थी, एंड वी कैन इवन पैनलाइज द प्राइवेट केटरर्स, वो भी फिल नहीं कर रहे थे। फिर वो गवर्नमेंट मेस वाले सीएचएमएस वर्कर्स कैसे ही करेंगे जब हम जिन पे पैनलाइज कर सकते हैं वो नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट मेस वाले, तो बहुत दूर की बात है। बेसिकली ये जो चीजें जितना आप इसको हाइपर बना रहे हो इतनी हाइपर नहीं है, सिंपल सी चीज है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पता है, इतनी चीजें आई है, उसको लिखना है, दैट्स इट।
तो आप शांत हो जाओ, जब वो रिबटल दे रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लीज मत चलाओ। सोपबॉक्स वीडियो में कुछ नहीं देगा, बाद में तुम लोग ही कुछ शेयर नहीं कर पाओगे, तो प्लीज थोड़ा धीरे उसको बोलने के बाद चला लो, दैट इज ओके, बोलते हो मत चलाओ। Let's move on to the next question. So Zakir, you have mentioned in your manifesto कि second time room cleaning के लिए will be charging students, right? So the housekeeper will be paid extra money from students' pocket for second time room cleaning, ठीक है? The quality of room cleaning during first attempt will be purposefully declined, forcing students to opt for another room cleaning within a month. This will completely violate the purpose of bi-monthly cleaning and scope of work of PHO. How do you plan to eliminate this possibility? फर्स्ट थिंग, ये सारा तूने कुछ अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट टाइम की जो रूम क्लीनिंग है वो खराब हो गई, सेकंड टाइम तो क्या assumptions क्यों कर रहा है? मतलब हवा में क्यों है यार? मतलब ग्राउंड का टेक्निकल और वही बात क्वेश्चन हो गया क्या आपका? ये हवा में क्वेश्चन पूछ के खत्म हो गया, आंसर नहीं आपके पास? So regarding the calculation, this is the calculation for the ये मुझे मत दिखाओ, ये लोगों को पढ़ के बताओ इधर। मैंने क्वेश्चन पूछा है, इन लोगों के इस पे क्वेश्चन पूछा है। If you will give me the permission, I can upload the calculation on the Facebook. अरे अभी पढ़ के तो बताओ, लोग जानना चाहते हैं इधर क्या आपका कैलकुलेशन है। So प्लान इज कि जो स्लॉट वाइज मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, इट्स लाइक 12-15 तक वो फ्री हो जाते सारे पीएचओ वर्कर्स, वीकेंड में सारा रूम क्लीन करके रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम से 30-30 मिनट्स के मैं स्लॉट बना रहा हूँ, एक दिन में 7 स्लॉट है वैसे। सो करेंटली वीकेंड में 144 रूम्स क्लीन कर पाते हैं वो। अगर ये सिस्टम फॉलो होता है, दे विल बी एबल टू क्लीन 616 रूम्स इन द एंटायर वीक, क्योंकि वीकडेज में जो शाम में सेकंड शिफ्ट में पीएचओ वर्कर होता है, वो 7 o'clock फ्री होके रूम पे बैठा हुआ होता है, वहां पर तो तैयार जाने के लिए होता है, तो वहां पर 4 स्लॉट सेट करे, तो बेसिकली सब कुछ मिला के डबल हो रही रूम लेने की एफिशिएंसी जैसे इंक्रीज किया कैलकुलेशन करके। एंड रिगार्डिंग दिस आई ऑलरेडी टॉक्ड विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अथॉरिटी। ठीक है जाकिर, सो एक बार मेरे को बता देना है, चार्जेस कितने चार्ज करोगे तुम लोगों से? So same होंगे जो current rate है, I've already discussed with the institute authority. Current rate is 0.5 rupees per square meter. So मैं hostel 5 में रहता हूँ, so हमारा रूम क्लीनिंग का चार्ज आता है 7 point something rupees. So it's like अगर एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं, so 3.5 रुपए इतना हम बेयर कर सकते हैं। And institute authority said कि we don't want to fund this क्योंकि लोग रूम क्लीन नहीं करवाते, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उन्होंने कहा अगर रूम क्लीन हम लोग करवाएंगे तो हम इसे टोटली फंड कर सकते हैं, और अभी हम फंड नहीं करवाएंगे, उन्होंने ये बोला। सो प्लान इज कि इससे लोगों को पता चलेगा देयर आर पीपल हु वांट देयर रूम टू बी क्लीन सेकंड टाइम, सो क्लीन हो सकता है। अरे जाकिर, आपने 0.5 रुपीज स्क्वायर मीटर कुछ बोला, राइट? तो इसका आपको आइडिया कि एग्जैक्टली करंट इंस्टीट्यूट का एरिया कितना है, इससे एग्जैक्टली कितना कॉस्ट होगा? लेकिन मेरे पास वो सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, आई कैन शो यू। Please listen to what the candidate is saying. ढूंढ ले ठीक है, तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट का एरिया है, ठीक है, इनिशियली अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट था, राइट? ठीक है, आपको पता है 2 हॉस्टल्स अभी मतलब चले गए 7 और 8, ठीक है, 18 एक ऐड हुआ है, नेट एरिया इज अराउंड 80,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने 0.5 रुपीज का बोला, अगर आप मल्टीप्लाई करो सिंपली 4.5 लाख 4 लाख रुपए का अराउंड आता है। इस साल का एस्टिमेट आपको पता है कितना पीएच होगा? 10 करोड़। 9.23 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, ठीक है।
9.23 करोड़, इसमें 4 लाख डाल दो, ये रिलेवेंट रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है इसमें। पॉइंट इज इसमें आप मतलब यही चीज इसमें Zakir, you can ask the next question. You have mentioned pushing for induction-based cooking in hostel canteens. Have you considered these challenges like induction-based cooking is expensive than the gas, and the initial cost of the utensils is very expensive, and electricity will issue. What you will do about these things? ओके, तो जाके सबसे पहले तो मैं नीड बता देता हूँ इंडक्शन की नीड क्या है। ठीक है, आपको ये पता है काफी सारे कैंटीन्स के पास फायर लाइसेंस नहीं है, एंड जिनके पास है आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। ओके, तो सबसे पहले तो हॉस्टल 4 ने ये इनिशिएट किया है अभी। ठीक है, आपको पता ही होगा ये चीज, हॉस्टल 4 ने इंडक्शन बेस्ड कुकिंग ये किया है। और मेरे पास यहाँ पे पूरा रेट चार्ट रेडी है कि मतलब क्या इंडक्शन बेस में प्लान कर रहा हूँ। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा, ठीक है, सो 3.5 से 5 किलोवाट का एक इंडक्शन होता है बराबर। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब पर घंटे मुझे 3.5 से 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है, पर घंटे मुझे 3.5 से 5 यूनिट मतलब इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को यार इतना तो बोल ही सकता हूँ मैं। ठीक है, 6 इंडक्शंस लगेंगे। ठीक है, जो मेरा प्लान है 11 आवर्स का कैंटीन ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद मतलब इसको मैं ईयर लॉन्ग कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 30 to 20, तो फाइनली ये अमाउंट आता है अराउंड 12 लाख रुपीस। ठीक है, अभी गैस रेट्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, करंटली गैस रेट्स है 920 रुपीस पर सिलेंडर। ओके, एवरेज कैंटीन वाले को 3 सिलेंडर लगते हैं पर दिन। ठीक है, कंफर्म है, आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हो, मैंने अराउंड 4 से 5 कैंटीन वालों से पूछा है। ठीक है, उसके बाद ये अमाउंट जो है ये अराउंड 10 से 10.25 लाख रुपए तक जाता है। इनका गैस बिल जो है वो साल भर का, तो आई एम इंक्रीजिंग 2 लाख रुपीस, आई एग्री, बट पॉइंट इज कि 2 लाख रुपए इंक्रीज में मैं फायर सेफ्टी मतलब प्रपोज कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, तो पहले तो तुमने कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और मैंने भी कैंटीन वालों से लिसन टू मी, कैन इंटरप्ट इन बिटवीन। फर्स्ट थिंग, तुमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाई है, मैंने भी कैंटीन वालों से बात करी है, एंड उनका अराउंड 35 सिलेंडर्स पर मंथ जाता है। सो 23,000 अराउंड का वो सिलेंडर्स में एक्सपेंड करते हैं, और अभी जो तेरी कैलकुलेशन है पर मंथ अगर करेगा तो 56,000 अराउंड कॉस्ट आता है, तो जस्ट डबल हो रहा है। तो जो करंट रेट से पहले तो वो डबल होंगे, सो जो पे कर रहे हैं अभी अपन फूड के लिए वो इंक्रीज करेंगे रेट। एंड द सेकंड थिंग कि ऐसा नहीं है तो फायर इंडक्शंस लेकर आ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं। उनमें यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं वो 2 से 3 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल यूटेंसिल्स से, पहले तो उनकी इंस्टॉलमेंट चार्जेस होती है। एंड ऐसा नहीं है कि उसके लिए एनओसी गेंसी से नहीं लेनी पड़ती है, उसके लिए भी एनओसी लेनी पड़ती है। एंड अभी जो कुकिंग टाइम है उसको बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो अभी 2 लीटर चाय बनाने के लिए आधे घंटे वेट करता है, वो पराठा ठीक से नहीं बना पाता, चाइनीज और ग्रेवी तो बनी नहीं पाती इंडक्शन में। इंडक्शन की मेंटेनेंस काफी एक्सपेंसिव होता है, और वो ज्यादा बार ठंडा गर्म होता है इंडस्ट्रियल भी, तो वो उसकी प्लास्टिक चटक जाती है एंड उसका जो सिरेमिक है वो छोड़ देता है, सो वो भी कॉस्ट इंक्लूड होगी इसमें, तो सब बढ़ा के वो बेयर नहीं कर पाएगा कॉस्ट। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे पूछ रहे थे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसा रहेगा 60 से 70 हज़ार का इंडक्शन आता है। ठीक है, अराउंड 1.4 लाख के उसके यूटेंसिल्स लगेंगे। आपको पता ही होगा कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट अपन 3 साल के कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज मैं टेंडर में ही मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप इंस्टीट्यूट में आ रहे हो तो तभी आप ये अप्लायंसेस लेके आ रहे हो, राइट? ये चीज टेंडर में मेंशन होगी, पहली बात। दूसरा चीज जो आपने मेंटेनेंस का बोला है, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर आप बता रहे हो डबल होगा, मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर एक्यूरेट है, ठीक है, वेरीफाइड बाय अराउंड 4 to 5 कैंटीन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कॉस्ट इतनी तो नहीं बढ़ रही जितनी आप बोल रहे हो, आई एग्री कॉस्ट बढ़ेगी, बट ऐसा है कि नेट इंक्रीज उसका अराउंड ग्रेवी आइटम्स बन नहीं सकती। सारी कैंटीन शट डाउन हो जाएंगी जो इस साल हुआ, और उसको टाइम का क्या होगा, जो वेटिंग टाइम इंडक्शन में लगता है, हम सबने इंडक्शन में कुकिंग करी है, उसमें काफी टाइम लगता है कुक करने में, तो वेटिंग टाइम क्या स्टूडेंट्स बेयर कर पाएंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल 4 में कैंटीन विजिट करने बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, 4 के भी बच्चे 5 आते हैं, 2 जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बनने में बहुत टाइम लगता है। लाइसेंस के रिगार्डिंग आप कुछ पूछ रहे थे, तो मेरा लाइसेंस का ऐसा है, आपने डीएमसी में पूछा है एग्जैक्टली कि कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होते हैं इसके बारे में? मैंने पूछा है, ठीक है, हेड लाइसेंस चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बारे में आप
आपको पता ही है क्या एग्जैक्टली सिनारियो होता है। उसके साथ साथ जो फायर एनालिसिस की आप बात कर रहे थे, इंडक्शन अगर आप ऑपरेट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग फायर लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है हेल्थ लाइसेंस। ठीक है, हेल्थ लाइसेंस अगर आपके पास है यू कैन ऑपरेट इंडक्शन, इसमें भी आप ऑपरेट कर सकते हो आपके पास लाइसेंस है। पहली बात। दूसरी रिगार्डिंग चीज, आप मेरे को टाइम का बोल रहे थे, अरे यार आप तो कैंटीन बंद ही कर रहे हो यार, मैं तो कुछ दे तो रहा हूँ एटलीस्ट। तो टाइम का अगर रीटेंडरिंग ये चीज होती है अगले साल, ये चीज रीटेंडरिंग पे जाती है, अगली कैंटीन बंद ही होने वाली है। आई एम प्रपोजिंग, मैं पहले ही अपने मोटिवेशन में कहा था, इंडक्शन बेस्ड कुकिंग जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब वो बेसिकली उसकी जगह मैं एक नई चीज प्रपोज कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को मतलब सस्टेन कर पाएगी अच्छे से। ठीक है, पॉइंट ये है अगेन आपके रूम क्लीनिंग पोर्टल के बारे में मैं कुछ सोच रहा था। आपने देखा है रूम क्लीनिंग पोर्टल एग्जिस्ट करेगा, तो इस पे कौन कौन सी मतलब कैसा आपका पोर्टल का आइडिएशन है, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, एंड आपने किन किन अथॉरिटीज से इसके रिगार्डिंग बात करी? He is not allowed to name authorities. relevant authorities. Okay. And the second thing, I have already talked with the people who are going to code this, like the CSAT and the web norms of hostel HA Council. एंड जो इसकी डिटेलिंग है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है क्रिएट करने में। जब तुम इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जाओगे ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता है, मतलब कब सोचना है सारी चीज़ें, बिना बिना सोचे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। और पहले का बेसिक यूज की उसमें एग्जैक्टली क्या क्या होगा एंड बाकी सारी चीज़ें डिफाइन हो सकती है। इफ यू आस्किंग वो कैसे काम करेगा, सो जो वीकडेज वाले हैं, जो वीकडेज में कर रहे हैं वो एवरीडे 2 PM तक वो क्लोज हो जाएगी। जो इवनिंग के लिए हॉस्टल काउंसिल प्रिंट आउट निकाल के देगा या फिर हॉस्टल हॉल मैनेजर प्रिंट आउट निकाल के देगा। यू कैन नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। जो डायनेमिक है और जो वीकेंड्स के लिए उसमें जैसे कि जब सैटरडे और संडे के लिए क्लीनिंग है तो फ्राइडे 2 PM इसकी भी क्लोज हो रही है, तो फ्राइडे 2 PM के बाद हॉल मैनेजर या फिर हॉस्टल काउंसिल प्रिंट आउट निकाल के जो करंट शीट है जिसमें कॉलम ऐड हो रहा है टाइम का रूम वाइज। पहला क्वेश्चन अगेन इस पे कि ये आपका जो सेकंड टाइम रूम क्लीनिंग है उसमें भी रहेगा राइट, मतलब आपकी जितनी बार आप रूम क्लीन कर रहे हो इस फोल्डर के बेस पे कर रहे हो। तो पॉइंट है, मान लो आपका एक स्लॉट है, ठीक है, उस स्लॉट में जैसे 12, 13, 14 वाला हॉस्टल है, ठीक है, 5.5 से 6 का कोई सा एक स्लॉट ले लो जो आप प्रपोज कर रहे हो, मान लो उसमें से 1000 बच्चों ने सेमी स्लॉट भर दिया, क्या करोगे उसको? तो हर स्लॉट की अपर लिमिट होगी, स्पेसिफाइड है जो ऑलरेडी यू कैन नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। तो हर स्लॉट की अपर लिमिट होगी डिपेंडिंग ऑन द हॉस्टल। मैं हॉस्टल 5 का हूं, सो अपर लिमिट विल बी 7 स्लॉट्स। जैसे हमने 3-4 हॉस्टल्स के लिए प्लान करा है, ऑलरेडी डिस्कस विद द इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज, ये हम फेज वाइज जाएंगे, पहले पायलट रन करेंगे फिर जाएंगे। एंड पॉइंट बीइंग कि बड़े हॉस्टल्स, आई एग्री, हॉस्टल 18 में काफी ज्यादा इश्यूज है रेशियो वर्कर का, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि प्लान इज की जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसमें बढ़ाएंगे। यू ऑलरेडी नो कि कोई भी नई चीज हम इंप्लीमेंट करवाते हैं तो एंटायर इंस्टीट्यूट में एट अ टाइम नहीं करवाते, हम फेजेस में जाते हैं। बट यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप अपर गैप प्रपोज कर रहे हैं तो ये पहले ही स्टेटमेंट में बोल देता, मैं क्लैरिफाई हो जाता उसमें। तुझे डाउट्स आते रहेंगे ग्राउंड वर्क के जैसे, तो मैं बताते रहूंगा ना तुझे। How do you plan to have tap aerators institute-wide? Do you know the price of a single aerator? And also each hostel has different kind of taps. How will you fit it for every tap? टैप एरेटर से आप कॉस्ट पूछ रहे हैं, सबसे पहले टैप एरेटर का फंडा बता दो क्या है। टैप एरेटर बेसिकली प्रेशर कंट्रोल कर रहा है वाटर का, ठीक है, एंड अराउंड 90 to 95% इससे मतलब पानी आपका सेव हो रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ आई एग्री कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अपने पास टैप्स हैं, बट जो टैप एरेटर जिससे मैंने बात करी है जिन वेंडर्स से, उन्होंने यही कहा है कि टैप एरेटर आप कोई से भी टाइप के नल में इंस्टॉल कर सकते हो, सो दैट्स नॉट अ कंसर्न, ठीक है। एंड प्राइसेस ऐसी हैं
अराउंड 30 to 40 रुपीस का एक टैबलेटर आता है, ठीक है, जिसमें आप आराम से प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं इंस्टॉल करने में। एंड रही बात अगर पानी सेव हो रहा है तो इसके लिए मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे को अपना नेचुरल रिसोर्स सेव करना हो रहा है, आई एम रेडी टू स्पेंड ऑन दैट। 90% सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एरिएटर्स। एंड जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जो तुम अमाउंट बोल रहे हैं, वो 40-60 रुपए का नहीं आता है, इट्स रियली कॉस्टली, 300 रुपीज। एंड हर वॉशरूम में बहुत सारे नल्स हैं। एंड तुमने अगर एक ग्राउंड वर्क में पूछा होता सस्टेनेबिलिटी सेल से, तो तुम्हें बताते थे कि इम्प्लीमेंटेशन में कितना ज्यादा इश्यू है इससे। इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज के रिगार्डिंग पूछ रहे हो, मैं अभी भी अपने सेम पॉइंट पे रहूंगा। मेरा वाटर सेव हो रहा है उसमें, आपने कहा सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं है। पानी जितना ऐसा है कि आप नॉर्मल हाथ धो रहे हो, ठीक है, उसमें से अराउंड 80 to 85% पानी आपका जस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको कोई यूज नहीं हो रहा है। अगर वो पानी में सेव कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। रही बात कॉस्ट स्ट्रक्चर की, जिन वेंडर से मैं बात किया हूँ, अगर मेरे को अराउंड 30 to 40 रुपीज में अगर ये चीज मिल रही है, आई एम रेडी टू टेक इट, ओके। एंड ये चीज मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कोई इसमें मेरे को इशू नहीं लगता। अरे ये फर्स्ट थिंग ये एक्सपेंसिव है। सेकेंड थिंग, हर टैप्स के डायमीटर्स अलग अलग हैं, उनको काउंट करने में डायरेक्ट सारे टैप्स के डायमीटर एनालाइज करने में टाइम जाएगा। एंड यू आर सेइंग कि इसमें पैसे लगाने हैं, जब ये इतना एक्सपेंसिव है तो जो करंट फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट की काफी खराब है, हम उनमें पैसा क्यों नहीं लगाएं और इसमें क्यों लगा दें? पैसा तो लाइसेंसेस में लग रहा है, राइट? तो पॉइंट इज, देखो जाकिर, कॉस्टिंग की बात कर रहे थे अपन, तो कॉस्टिंग पे मैं आगे ना आता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 से 40 रुपये में जो एरेटर ला रहा हूँ, आई एम डैम श्योर अगर वो एरेटर में इसमें लगाता हूँ तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंड जो प्रॉपरली मैं केटर करना चाहता हूँ, पानी सेव करना चाहता हूँ, पैसा सेव करना मोटिव नहीं है यार, पानी सेव करना मोटिव है मेरा। मैंने सबको पढ़ लोगे ना, सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग लिखे हैं 2-4 पॉइंट्स, अच्छे से पढ़ लेना। पॉइंट इज कि वो पैसा तुम्हारा नहीं है, वो इंस्टीट्यूट का है और बच्चों का। जब बच्चे सफर कर रहे हैं तो वो पैसा तो फिर पानी सेव करने में लगा रहे हो, जबकि दूसरे मीन से पानी बचाया जा सकता है। पैसा इंस्टीट्यूट का है, पानी तो सबका है ना भाई, पानी बचाना नहीं है क्या? पानी इससे बचेगा। एंड जो आप दूसरे मीन्स बोल रहे हो वो भी मैंने अपने मैनिफेस्टो में कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो कुछ। Earlier there existed a Dabbawala system which used to operate on the similar lines of your proposal. Are you aware of the reasons leading to the closure of the service? जो आप implement करना चाहते हो अभी? जो तूने क्वेश्चन पुट किया उसका एक वर्ड भी आंसर हो सकता है, ऑफ कोर्स। Okay, I'll reframe the question. Please state the reasons. तो फर्स्ट थिंग जो स्टॉप हुआ था उसका फर्स्ट रीजन ये था कि एलसीएच के पास प्रॉपर एरिया नहीं था वो खाने का, एंड किसी ने सिस्टम प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया था। एरिया नहीं था, खाने का एरिया नहीं था, इसीलिए डब्बा वाला सिस्टम बंद हो गया। प्रॉपर, अच्छा प्रॉपर, ओके, ये वर्ड लगाने से क्या होगा बताना जरा। प्रॉपर एरिया नहीं था, जिससे डब्बा का सिस्टम बंद हो गया। डब्बा वाला सिस्टम बंद क्यों हुआ, सबसे पहले तो वो मुझे बताओ, एरिया का क्या लॉजिक है उसका? फर्स्टली इनिशियल प्लान में 5 कंटेनर्स वाले डब्बे प्लान किए थे, जिसको रख के खाने के लिए टेबल चेयर्स चाहिए, वरना वो बहुत ज्यादा इधर उधर खाना बिखरेगा। एंड इंस्टीट्यूट को नहीं चाहता था हर जगह खाना पड़ा हो और लोग उस पर चले, इसलिए इनिशियली वो क्लोज हुआ था। अच्छा जाकिर, तो मतलब आप डब्बा वाला सिस्टम भी ला रहे हो, डब्बा लाने से पहले आप लोगों को टेबल बांट रहे हो, राइट? कि पहले टेबल ले लो डब्बा रखने के लिए, फिर उस पर डब्बा रख के खा लेना, राइट? ये प्लान है। यहाँ पब्लिक का एक्सपीरियंस की कमी, तो ऑलरेडी वहाँ पर प्लेट्स आती हैं जिसमें 5 कंटेनर होते हैं, बायोडिग्रेडेबल लिड्स भी आती हैं, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज वे में होगा। अगेन अभी कहाँ चल रहा है फिर ये टेबल आप जो कर रहे हो, अभी के टेबल धो रहे हो क्या लोगों का?
तुमने मुझसे पूछा था रीजन कि व्हाई वी हैव क्लोज दिस डब्बा वाला सिस्टम, नॉट समझ रहे ना क्लोज क्यों हुआ था वो पूछा था। क्वेश्चंस रिफ्रेम करके उसको पॉइंट आउट करके बैंड करके दूसरे डायरेक्शन में मत लेकर प्लान ऑफ जाए। इंप्लीमेंटेशन बता दो यार एक बार प्रॉपर कि कैसे डब्बा वाला सिस्टम हम इंप्लीमेंट करें। श्योर। सो सेपरेट कलर कार्ड्स होंगे हर हॉस्टल्स में, बट जो भी उस मंथ के लिए ऑप्टेन करता है उसके लिए, एंड जो रजिस्ट्रेशन होगा वो गूगल फॉर्म के थ्रू होगा, एंड प्लेट्स वगैरह जो भी परचेज करना, क्वांटिटी वगैरह पूछना है वो ऑलरेडी टेंडर में दिया हुआ है, तो एक बार खोल के नेक्स्ट ईयर सी पढ़ना, उसमें मेंशन है, उसमें मेंशन है। एंड देयर विल बी अ ड्रॉपिंग एट लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स पार्किंग एरिया जहाँ पे फूड ट्रक इनिशियली खड़ा होता था, वहां पर ड्रॉप करने का प्लान है। एंड जो बाकी के डिटेल्स है कौन लेकर आएगा कैसे लेकर आएगा वो ऑलरेडी गिवन है लेक्चर सी में, पढ़ सकते हैं। पॉइंट वही है, यही मैं अगेन आपको पूछने लगा था कि जो आपका आप अभी प्रपोज कर रहे हो जो डब्बा कौन लेके जा रहा है, तो मुझे फिर से सुनना है बिकॉज ये सिस्टम करंटली नहीं रन हो रहा है। तो टेंडर पढ़ने के बजाय आप लोगों को बता दो एक बार कि कैसे आप करना चाहते हो। इसके लिए ऑलरेडी टेंडर में केटरर्स कोड करते हैं अमाउंट, दे हैव टू अबाइड बाय दिस सिस्टम। तो बेसिकली बस उन्हें इन्फॉर्म करना है कि स्टार्ट करो, दैट्स इट। क्या डाउट है वो पूछ ले, हवा में चीजें मत पूछ। डाउट तो यही है जो आपने शुरू में टेबल कर रहे हो, डाउट इज रिगार्डिंग द टेबल। सबसे पहले तो अगर आप बोल रहे हो कि बिना टेबल के वजह से आपका ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, एंड अभी आपके पास प्रॉपर एरिया है, लीड्स वगैरह ला रहे हो, अरे अगर इतना एरिया होता है इतनी चीजें होती तो पहले ही चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है यार। ये पूछना क्या चाहता है, मतलब ये ऑलरेडी ये डब्बा वगैरह टेबल वगैरह की नीड जब थी, जो 5 कंटेनर्स अलग अलग थे, एंड फिर इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज रेडी नहीं थी क्लीनिंग, दे आर रेडी फॉर दिस एंड वी हैव रियली ऑर्गेनाइज्ड द विलेज, पूरा प्रॉपर चैनलाइजेशन सिस्टम बनाया। तो डब्बे कौन साफ करेगा फिर बता देना सबसे, इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज को बुला रहेगा साफ करने के लिए। टेंडर डॉक्यूमेंट पर भाई उसमें मेंशन है कि जो क्लीनिंग होगी वो हॉस्टल के जो केटरर्स हैं वो क्लीन करेंगे, नॉट ये नहीं यही बताना जो हमारे क्लीनिंग है वो तो उसकी जो क्लीनिंग वाले एरिया जहाँ पर भी लोग बैठे हैं वो केस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी एडेड है, कुछ लोकेशंस बाकी ऐड होंगी। We can move on to the next question. You have mentioned introducing postgraduate online hostel room allotment interface. Yes. How will you manage for the complete data for vacant rooms in each room, in each hostel? ठीक है, सबसे पहले तो मैं अगेन इसमें करंट बता देता हूँ दिक्कत क्या होती है। जो हमारी पीजी कम्युनिटी है, लाइक सबसे पहले तो एमटेक अलॉटमेंट्स, एमटेक स्पॉट ऑन अलॉटमेंट्स, इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि जब आते हैं यहाँ पे तो उनको कौन सा रूम मिलने वाला है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जैसे एक एल्गोरिथम रन होता है यूजी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, सेम एल्गोरिथम विल रन फॉर द पीजी, कुछ उसमें माइनर चेंजेस करके। ओके, एंड पॉइंट इज एचसीयू में जाके मैंने पूछा, एक बार राउंड अप कर लेना चाहिए था आपने भी। एचसीयू में जाके मैं पूछ के आ रहा हूँ कि नंबर ऑफ रूम्स का आप ट्रैक कैसे रखोगे। तो पॉइंट इज उनको नंबर ऑफ रूम्स अगर आप पहले बता रहे तो जो रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स उनको बताएंगे कि XYZ नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास खाली है। ओके, एंड एल्गोरिथम रन करने से पहले ही उनके पास क्लियर ट्रैक होगा कि इंस्टीट्यूट में इतने रूम्स खाली हैं एंड इतने लोगों को आप उसमें अकोमोडेट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तूने एक बार जाकर बात करी, मैंने पूरे साल डिस्कशन किया। पूरे साल में इसे सब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जब मैं एक बार में करके आ गया। First thing, second thing, they still get the data of the room, but वो काफी redundant है। हॉस्टल मैनेजमेंट पोर्टल अगर तुझे पता होगा एक एग्जिस्ट करता है जिसमें हॉल मैनेजर्स एंट्री करते हैं, उसमें जो डेटा जाता है सिंगल डबल ऑक्यूपेंसी बीटेक एमटेक ऐसे वाइज जाता है, तो बहुत लोग होता है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि रूम डेटा कैसा है। सेकेंड थिंग, हम इसका तू साल में सिर्फ एक बार यूज कर रहा है, तो तेरा जो भी कोडर है उसने एक बार कोड किया फिर उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है। जो एचसीयू ने प्लान किया था, जो हमारे साथ एचए काउंसिल्स के साथ डिस्कस करके हमने प्लान किया था, वो है हॉस्टल मैनेजमेंट पोर्टल का कंप्लीट रिप्लेसमेंट। तो ये एक प्रॉपर पोर्टल होगा जो ऑलरेडी हॉस्टल G6 और हॉल मैनेजर्स डेटा
एंट्री करते कि कौन किस रूम में रह रहा है, वो डेटा वो डायरेक्ट उस पोर्टल पे फिल करेंगे कि HTO ऑफिस विल बी हैविंग द एग्जैक्ट डेटा कि कौन किस रूम में हो रहा है। उनके पास पता होगा कि कितने वेकेंट रूम है कितने नहीं, जिसका अभी उनको प्रॉपर डेटा नहीं जाता। इनफैक्ट जो तुम अथॉरिटीज बोल रहे हो उन्हें इन्फॉर्म करती हो, प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं करती है। सो जो इनफैक्ट गेस्ट बुकिंग में अभी इश्यूज हो रहे हैं वो इससे रिजॉल्व होंगे, एंड जो तुम पोर्टल प्रपोज कर रहे हो वो भी इससे रिजॉल्व हो जाएगा। ये उनका करंट डिसीजन है कि ये करना है। Okay. So why there should be a portal? Why should there should be a portal जो एक बार यूज हो और बस बंद हो जाए, उसका कोई यूज नहीं है। तो जाकिर आपको ये पता है ना यूजी अलॉटमेंट में भी एक एल्गो रन होता है, तो आप क्या चाहते हो वो एल्गो को मैं रोज रन करते रहूं, रोज अलग अलग रूम मिलते रहेंगे? सेम केस है, पीजी के लिए भी सेम एल्गोरिथम रन हो रहा है। एक बार उनको रूम मिल गए उसके बाद क्यों ही रन करना है उसको? अंदर एल्गोरिथम में नई चीजें नहीं ऐड हो रही है, एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है, उसमें खाली आपको लोगों के नाम चेंज करने हैं, दैट्स इट, सिंपल एज सिंपल। That's the point कि एक बार रन कर दिया उसके बाद पोर्टल का कुछ काम है जो तू प्रपोज कर रहा है, एंड ये गेस्ट बुकिंग के लिए भी पोर्टल यूज होगा एंड इस अलॉटमेंट्स के लिए भी यूज होगा। एंड सेकंड थिंग जो एमटेक एंड पीएचडी वाले होते हैं उनको सिर्फ 15-16 नहीं मिल रहा है, उनको बाकी भी हॉस्टल्स में आते हैं। तो हर बार एल्गोरिथम में जब तू रन करेगा सेमेस्टर की स्टार्टिंग में, तुझे अगर पता हो कि वो एक साल में दो बार एकेडमिक स्टार्ट होता है तो पूरे एल्गोरिथम बार चेंज करनी होगी। तो ये जब एक बार में रिजॉल्व हो सकता है इशू, तो जो बार एक क्यों करना है? ओके, एक बार का रिजॉल्विंग का अगेन अपने पॉइंट पे आता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट का जो आप मैं पोर्टल के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, बेसिकली क्या रहेगा, मान लो यू आर पीजी स्टूडेंट, ठीक है, तो आप जब अपना मतलब एंट्री कर रहे हो इंस्टीट्यूट में, आप एक बार अपना नाम वगैरह डाल रहे हो वहाँ पे, आपको पता चल रहा है कि आपको ये XYZ रूम नंबर अलॉट हुआ है, यू आर डायरेक्टली गोइंग टू दैट रूम। अभी का करंट सिनेरियो पता है आपको क्या होता है? पीजी स्टूडेंट्स को 2 से 3 दिन तक लाइन लगानी पड़ती है हॉल मैनेजर के ऑफिस के बाहर, तब जाके उनको रूम मिलता है। कई बार तो HC ऑफिस के चक्कर काट करते हैं, तब भी उनको रूम नहीं मिलता है। तो द पॉइंट इज कि वो उनको पहले से रूम पता होगा, वो वहाँ पे जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, दैट्स इट, रूम मतलब ऑक्यूपाइड। एंड द पॉइंट इज, रही बात आपने एक चीज एक और क्वेश्चन किया था कि मैं ट्रैक कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, राइट? सो द पॉइंट इज कि जैसे एंड ऑफ द सेमेस्टर अगेन कितने रूम्स वैकेंट है, कौन गया है, कौन क्या, कुछ लोग फास्टर कर जाके भी जाते हैं, उनके रूम्स भी खाली हो जाते हैं। एग्जैक्ट ट्रैक HCO मेंटेन करने को रेडी है। HCO को जस्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ हॉल मैनेजर के थ्रू डेटा चाहिए, वो मिल जाएगा भाई, बोलना होता है बस। Very well stated the issue, and हॉल मैनेजर अभी भी डेटा देते हैं जो बहुत रिडंडेंट है। We need complete replacement of that portal। तो सही बोल रहे हैं कि वो पोर्टल, वो जो तू बोल रहा है उसका भी यूज नहीं हम टेलिंग यू कि जो उन्होंने करंट आइडिया डिसाइड किया, मैंने इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज में नाम नहीं ले रहा हूँ, हेड के साथ जो मिलकर डिस्कस किया है सेमेस्टर में, ये सेम आइडिया इम्प्लीमेंट होने वाला है। आई एम टेलिंग यू कि ये होने वाला है, एंड यू आर जस्ट सेइंग कि पोर्टल का काम भी होगा। आई एम नॉट आस्किंग यू कि काम क्या होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू रिडंडेंट एज करंट हॉस्टल मैनेजमेंट पोर्टल। ओके, इतना ही इंप्लीमेंट होना होता है ना तो पहले हो जाता है यार। स्पॉट राउंड का लोकेशन सबको पता है ना, उसमें क्या क्या दिक्कतें होती है, मेन एमटेक राउंड में दिक्कतें पता है आपका। ये पोर्टल में अलग पोर्टल इसलिए प्रपोज कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। ये चीज सिंपल एक सी शीट टाइप ऑफ रहेगा, मतलब जो हम अपलोड करेंगे एंड उसको पोर्टल पे खाली अपना नाम एंड रूम नंबर दिखना है। अरे यार इतना सा पोर्टल इंप्लीमेंट नहीं दे रहे हो यार, इंस्टीट्यूट कैसे चलाओगे आप? विल इंश्योर कि काउंसिल फॉर्म हो जाए 1 अप्रैल के पहले, ठीक है? मुझे ये बताओ सबसे पहले तो 12, 13, 14 डांसा ये सब हॉस्टल्स में, इन जनरल सारे ही हॉस्टल्स में, हाउ विल यू इंश्योर कि ये सबसे पहले 1 अप्रैल को आपकी मतलब काउंसिल फॉर्म हो जाए? दूसरा चीज, जो इंट्रोडक्शन सेशन आप करा रहे हो, इंट्रोडक्शन सेशन में आपने बोला कि डीन स्टूडेंट अफेयर्स आएंगे, हॉस्टल काउंसिल को बताएंगे, एग्जैक्टली क्या बताएंगे? डीन एक बार मेरे को बता देना। फर्स्ट थिंग कि कैसे इंश्योर करोगे पूछना है, देन यू शुड बी नो कि ये सेक्स कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है,
and its council should be formed by 1st of April. First thing. Second thing, the basic idea is जो basically दूसरी institute councils करती है will be floating a form in the same way in the March जो hostel seckies के लिए होगा and hostel seckies का common ground होगा जो HC council make sure करेगी कि common ground हो और उनको hostel से अपने previous council के एक दो लोगों से just मिलना है then जो new councils और पुराने councils है उनकी interview होगी 20 से 30 मार्च के बीच में. Second thing, कैसे इंश्योर करोगे? So I have already pitched this idea to each and every GC that most of them are agreed on this. They really want this क्योंकि अभी इशू ये है कि लोग काउंसिल बहुत लेट फॉर्म होती है तो जो मीटिंग्स वगैरह होती है HGSC मेंट का वो काफी एंड में पुश हो जाती है. तो आगे दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. सबसे पहले तो एक टाइम बताओ टांसा में आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? सबसे पहला चीज. दूसरा भाई फ्रेशर्स आए नहीं है तो 1 अप्रैल के पहले कैसे आपकी काउंसिल फॉर्म हो जाएगी यार उनकी? दूसरा हालांकि मुझे कंप्लीट करना है उसके बाद ठीक है ठीक है. उसके बाद एक मेजर चीज जो ऑब्जर्व की गई है यार जो लोग फ्रेशमैन हॉस्टल में होते हैं ना उनको सीनियर हॉस्टल के इश्यूज नहीं पता होते हैं. ठीक है जब तक आप अभी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर होता है मैं सेकी स्पेसिफिक अगर चीजें बोलूं आपको तो जैसे आप हॉस्टल में आते हो अपने नए हॉस्टल में आते हो कुछ समय स्पेंड करते हो वहाँ के इश्यूज जानते हो. ठीक है उसके बेस पे आप मतलब जाते हो कि यहाँ ये इश्यूज है तब आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं जाऊँ मेंटेनेंस सेकी बनूँ मैं सेकी बनूँ या जो भी एक्सर्साइज सेकी बनूँ. अरे यार अगर आपको सीनियर हॉस्टल के इश्यूज ही नहीं पता है तो कैसे आप एक अच्छी काउंसिल फॉर्म कर पाओगे? अरे 1 अप्रैल के पहले फर्स्ट टाइम कोई फ्रेशी हॉस्टल्स में नहीं होगा क्योंकि लोग ही लेट आते हैं एंड सेकंड थिंग रिगार्डिंग कि उनको अपने हॉस्टल्स के इश्यूज पता नहीं होते तो उसके लिए कॉमन ग्राउंड वर्क एचए वाले जो करवा रहे हैं उनको एग्जैक्टली वर्किंग बता रहे हैं. सेकंड थिंग उनको अपने हॉस्टल्स के बारे में भी जानना है. इसके लिए वो ओल्ड हॉस्टल्स जो कि रिस्पेक्टिव काउंसिल उसके G6 और रिस्पेक्टिव जो को है उनका जो प्रेजेंट है वो उससे एक बार जाके मिलेंगे एंड जब वो अपने फ्यूचर हॉस्टल्स में नेक्स्ट सेमेस्टर जाएंगे तब वो काउंसिल में उनका टेन्योर ऑफिशियली स्टार्ट होगा. अभी इशू ये है एग्जैक्टली कि वो इतने लेट फॉर्म होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला काम है वो बिल्कुल वो सेम में काम ही नहीं होता है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू जो फ्रेशर्स हॉस्टल्स में होता है. द पॉइंट इज असल में बोल रहा था कि अगर जब आपको वो इश्यूज नहीं पता है जब रह नहीं चुके हो जैसे मैं अपने नए हॉस्टल्स में आकर रह रहा हूँ ठीक है उनके इश्यूज में जान रहा हूँ तब जाके मुझे मोटिवेशन मिल रहा है यार कि मैं हाँ जाऊँ मेंटेनेंस सेकी बनूँ उसके आगे काम करूँ इशू रिजॉल्व करूँ. ठीक है पहली बात ठीक है. उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि फ्रेशीज को आप पहले ही बुलाओगे ठीक है उनका 1 अप्रैल के पहले काउंसिल फॉर्म करोगे. यार मेंटेनेंस मेस में जाने का क्या मोटिव होगा? पावर पार्टी बनाओगे क्या सबको? बताओ. मुझे करंट सिस्टम से इसे कंपेयर कर रहा है ये करंट सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए रहे. और रही बात मोटिवेशन की तो हवा में बोल रहा है. इट इज सब्जेक्टिव. लोगों के मोटिवेशन सबके अलग अलग होते हैं एंड पॉइंट बीइंग के लोग दूसरे इंस्टीट्यूट काउंसिल्स में जाते हैं तो इस काउंसिल में भी लोग आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं पर मेन इशू ये होता है कि फॉर्म्स बहुत लेट फ्लोट होते हैं एंड ज़्यादातर बच्चे इंस्टीट्यूट क्यूआर्स के लिए चले जाते हैं एंड अगर जब वो सिलेक्ट नहीं होते हैं तो एक डिप्रेसिंग फेज होती है उनकी जब तक काउंसिल से फॉर्म निकल जाते हैं. तो बेसिक आइडिया है कि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले काउंसिल में आने के लिए. ऐसे डिप्रेसिंग लोगों को लेके काउंसिल बनाओगे क्या? ठीक है. एंड दूसरी चीज अगेन मैं मोटिवेशन पे ही आ रहा हूँ. अगर बंदे को इश्यूज ही नहीं पता है रियल लाइफ में सोशल में क्या इश्यूज होते हैं ग्राउंड वर्क से इश्यूज नहीं पता चलने वाले भाई अनलेस एंड अनटिल यू आर इन्वॉल्वड इन दैट सिस्टम. ओके अगेन मेरे को पता है क्या काउंटर करने वाले हो. द पॉइंट इज ये चीज अलग है वो चीज अलग है. तो ये सेम तेरे लिए भी है. ग्राउंड वर्क से पता नहीं चलता कि काउंसिल में क्या इश्यूज है क्योंकि मुझे भी नहीं पता चले अभी तक. एक्सपीरियंस मैटर्स. बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट मुझे पता है एग्जैक्टली क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं. ठीक है मुझे पता है एग्जैक्टली मेंटेनेंस में ओवरऑल क्या इश्यूज है ईटरीज में ओवरऑल क्या इश्यूज है एंड इन जनरल इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज में क्या क्या इश्यूज है. No personal attacks. Listen, if you guys attack each other personally, it's not your personal. We can move on to the next question.
So तो सराउंडिंग्स क्लीन रखना, फूड वेस्ट नहीं करना, एंड ऐसे कुछ कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो पॉइंट इज ये अपनी अपनी पर्सनल मतलब चीज. ये टॉपिक डिबेट का टॉपिक है. तुम्हें टॉपिक लिविंग इन शेड वाले एटिकेट उसी का ही कर रहे हो, उसी का कर रहे हो. Etiquettes in a shared living space. IIT students live in a shared living space. There are several skills and etiquettes that they must inculcate to ensure a respectful coexistence. Some of these include keeping the surroundings clean, not wasting food, respecting others' personal space, being aware of first aid knowledge, etc. How can we inculcate these skills and etiquette among students without being preachy? Rajesh, you can start. तो द पॉइंट इज कि जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सराउंडिंग्स क्लीन रखने के लिए, फूड वेस्ट नहीं करने के लिए, एंड बाकी की मतलब किसी के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट देने के लिए. द पॉइंट इज जैसे सपोज क्लीनिंग वगैरह की चीज़ें हैं यार, ये पर्सनल हाइजीन, और अगर आप लोगों में ये चीज़ डेवलप कर पाओ कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है एंड इन जनरल आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. एंड दूसरी चीज़ की फूड वेस्टेज के रिगार्डिंग बात हो रही थी. तो फूड वेस्टेज के लिए तो सस्टेनेबिलिटी सेल भी ट्राई कर रही है कि कुछ कुछ चीज़ें देखें कि जैसे फूड वेस्टेज कम कर सके. एंड उसके लिए जैसे अपने मैनिफेस्टो पॉइंट में ही अपने मैनिफेस्टो पॉइंट में ही मैं एक चीज़ लिखा हूँ कि ऐसे 20 मतलब इंस्टीट्यूट फूड वेस्टेज डे इंप्लीमेंट कर सकते हैं महीने में 2 बार. जैसे इससे लोगों में एक आदत बढ़ेगी, जैसे फूड वेस्टेज नहीं करना चाहिए, लोगों में एक फीलिंग डेवलप होगी कि रोज ही एक तुम जीरो फूड वेस्टेज डे की तरह कंसीडर करो इस चीज़ को. एंड रही बात ऐसी कुछ कुछ जो चीज़ें जिसके रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो काउंसिल्स कैन पुट अप पोस्टर्स इसके रिगार्डिंग. ठीक है, इसके रिगार्डिंग काउंसिल्स पोस्टर्स लगा सकती है, लोगों में इन जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ट्राई कर सकती है. पोस्टर्स लगाने या फिर कोई भी इवेंट्स करवाने से कुछ नहीं होगा. वी हैव टू इंसेंटिवाइज द गुड हैबिट्स. दिस इज द सॉल्यूशन. So, like I have mentioned in my manifesto, we will be organizing different campaigns as social bodies of our institute does, and हम students को उसमें initiatives देंगे, incentives देंगे, and in fact institute authorities are willing to pay for this. We have to encourage students by showing the impacts of their little contribution to saving food and electricity. It's like also the points I have mentioned in my manifesto student support group. So the motive of forming a student support group is similar. The group will be brainstorming not talks but activities for improving the mental health of students, leading to a better hostel environment. SWC. They will be brainstorming different activities like talk on a tea and like this. तो कमेटी वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ आगे. तो बेसिकली यार कमेटी में कौन कौन रहेगा, जैसे आप अभी मेंशन किया कि कमेटी बनाना चाहते हो. मैं ये सोच रहा हूँ अगर इसके जगह पे अपन इन जनरल सारे ही लोगों में ये हैबिट अगर डेवलप करें कि यार रोज अगर आप ये चीज़ मानो, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हो, आप अपने मतलब
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा बहुत चेंज करो, तो वो बेटर नहीं रहेगा क्या? मतलब आप एक 10-15 लोग चुन रहे हो, वो 10-15 लोग एक कमेटी फॉर्म करके जा रहे हैं, बात कर रहे लोगों से, भाई अबे यहाँ नहीं ये नहीं करना, वहाँ वो नहीं करना. You have asked about the structure of the committee, like structure of. This is not committee correction. वो जो मैंने already बोला. Okay, तो मैंने कमेटी बोला भी कमेटी नहीं है. ओके, नोट करो ये. हाँ, तो बेसिकली ग्रुप इसमें वॉलंटियर्स होंगे, जस्ट लाइक जो हमने जेंडर सेल के लिए फर्स्ट चैंपियंस बनाए थे, इन द सेम वे स्टूडेंट वॉलंटियर्स होंगे. Guys, you're requested to please sit down. Please sit down. तो बेसिकली ग्रुप होगा वॉलंटियर्स का, जिसकी फर्स्ट एक सेशन SWC वाले जो कंसल्टेंट्स हैं वो लेंगे, एंड उसके बाद वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल. तो जैसे आप इस सेशंस की बात कर रहे थे ये, और मैं जैसे ये बोल रहा हूँ, अगर आप इन जनरल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पोस्टर्स लगाओ, इन जनरल लोगों में ये हैबिट डेवलप करो, कुछ एक सेशंस ऐसे कराओ जिसमें इन जनरल लोग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों में अगर लोगों में आप एक रोज हैबिट डेवलप कर पा रहे हो, ठीक है, यू आर पुटिंग अप फॉर्मिंग अ सेपरेट बॉडी उस चीज़ के लिए, जो एक सर्टेन ग्रुप होगा जो आप बोल रहे हो. उससे पहले आपने बोला कमेटी है, कमेटी नहीं है, फिर कमेटी है, तो एग्जैक्टली अगेन तो वहाँ पर कमेटी क्या है? मैंने वो बोला नहीं, there will be a group. I am saying we are deviating from that topic. We are deviating from that topic. We are saying, I'm just saying कि events conduct कराने से कुछ नहीं होगा. लोग events में नहीं जाते. हम campaigns वगैरह करें, करवाएं, जिसे incentivize करें, हम लोगों को चीज़ें दें. That's the point. आपने कहा था इसमें मतलब ऐसे अगर इवेंट्स कराएंगे लोग नहीं आएंगे, तो आप एक ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे लोग, राइट? सारे के सारे इशू आप ग्रुप में उठा लोगे. बेसिकली ग्रुप क्या है आपका? मैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आपका जो ग्रुप है वो कितने लोग हैं उसमें, कौन लोग हैं, और बेसिकली कैसे एक्टिविटीज करा रहे हैं. यू ओनली सेड कि लोग एक्टिविटीज अटेंड नहीं करेंगे, लोग नहीं आएंगे, लोग पार्ट नहीं लेंगे, एंड आप उनको इंसेंटिवाइज करोगे. क्या फिर से पावर बॉडी क्या इंसेंटिवाइज यार? कंफ्यूजन करी मैं क्लियर करता हूँ. I'm saying कि जैसे फर्स्ट चैंपियंस बनाए थे जेंडर सेल के, सेम ग्रुप होगा, एंड दे विल बी डूइंग have told you एक्टिविटीज कराएंगे, एंड they will give the incentives. तो वही मैं पूछ रहा था बेसिकली, व्हाट आई वाज आस्किंग इज कि आपको जो एक्टिविटीज है, आपने मैं एक शॉर्ट वर्ड में स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा. एक ग्रुप होगा, ठीक है, which will organize some activities. You said कि लोग उन एक्टिविटीज में नहीं आएंगे. So what I am telling is कि आप क्या इंसेंटिवाइज दे रहे हो? लोग टॉक्स में नहीं आते. अगर हम उनको इंसेंटिवाइज करें, जैसे कि हॉस्टल क्लीन कैंपेन में लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं आने के लिए, तो लोग आते हैं. जैसे कि अपनी डिफरेंट जो सोशल बॉडीज इंस्टीट्यूट भी करती हैं, इन द सेम वे हम कहेंगे इन चीज़ों को इंसेंटिवाइज करने से लोग आएंगे, चीज़ों को एनफोर्स करने से लोग नहीं आएंगे. लोग जनरली टॉक्स सुनने नहीं जाते. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. तो वही मैं पूछ रहा था कि इंसेंटिव्स का क्या है, कि इंसेंटिव्स आप एग्जैक्टली क्या है. वही क्वेश्चन पूछ रहा था. ऐसे मान लो वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा, आपका एक ग्रुप है, ठीक है, आपने ग्रुप बनाया, दैट इज कंडक्टिंग सम एक्सोजेड एक्टिविटीज. यू सेड यू नीड टू गिव इंसेंटिव टू पीपल. तो व्हाट आई एम आस्किंग इज वो इंसेंटिव क्या है? क्या इंसेंटिव को आप चाहते हो कि लोग आए और कंडक्ट करें? सिंपल इंसेंटिव शर्ट्स का जो अभी करंट सोशल बॉडीज देती हैं, द सेम वे स्टूडेंट्स को. ओके, सो द पॉइंट इज हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है सिखा रहे हैं. इन जनरल लोगों की प्राइवेट स्पेस को कैसे मतलब टैकल नहीं करना चाहिए सिखा रहे हैं. क्या करके? कपड़े और कैप्स देके, ठीक है. तो यार ये कौन सा इंसेंटिव है? कंप्लीटली आउट ऑफ माय माइंड. एक कैप्स देके और शर्ट्स देके आप लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हो. भाई अपनी अपनी पर्सनल हाइजीन सुधारो, ठीक है यार. दिस इज नॉट द पॉइंट. गेटिंग कंफ्यूज्ड. हॉस्टल क्लीन कैंपेन लोगों के ह्यूमन अटैचमेंट बढ़ा रही है हॉस्टल से. Insurance covers 1.5 lakhs per semester for students, which cost rupees 1,500 per semester. There are very few hospitals empaneled in AMA insurance.
We see some cases every year where medical expenses go way beyond the amount covered by insurance provided by the institute or problems with limited hospitals. However, there are students who do not get the need to avail insurance benefits, but for those who avail, current insurance cover amount and empaneled hospitals seem insufficient. What are your views? So, since you went first this time, he will go first this time. So I believe कि we have to outsource the insurance and जो empaneled hospitals उनके numbers increase करने पड़ेंगे. इसके अलावा भी ये काफ़ी बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जो अभी हैं तो लोग अपनी पॉलिसीज इसमें कवर नहीं होती है. इनफैक्ट जो करेंट इंश्योरेंस उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने की नीड है, जैसे डेंटल कवर्स, उन सारी चीज़ों को उसमें ऐड करने की नीड है. एंड द थिंग विच कैन बी डू इज आउटसोर्सिंग दी इंश्योरेंस. अगेन हॉस्पिटल के पॉइंट पे मैं वापस अपने व्यूज रख रहा हूँ. जैसे करंटली आप बोल रहे हो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ाने की ज़रूरत है. करंटली सिर्फ 4 हॉस्पिटल्स है स्टूडेंट्स के लिए, गोदरेज, हिंदुजा, फोर्टिस, हीरानंदानी हॉस्पिटल. ठीक है, ये एकदम रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फॉलो होते हैं रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम. तो बेसिकली मेरा इसमें सजेशन ये है, जैसे जाकिर बोल रहे हैं, आई ऑल्सो अग्री की मतलब इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज करने की नीड है. एंड ये सेम चीज़ मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन की है. इंश्योरेंस प्राइवेटाइज करके नंबर ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बढ़ा के और जो सर्विसेज अभी इंश्योरेंस में टैकल नहीं हो रही मान लो उनको अगर उसमें अपन टैकल कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड. I agree with that. That's what we have to do. Guys, please tone down your voice. So, Rajesh, my first question goes to you. How will you ensure that the feedback received from the students on IITB Hospital will have some influence over the administration? Have you done the required groundwork with the relevant authorities to ensure that the hospital staff is on the same page? Okay, so इसके रिगार्डिंग मैं नाम नहीं ले सकता, बट हॉस्पिटल हेल्थ एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं. Guys, calm down. हाँ, तो आपने ग्राउंडवर्क की बात करी, तो हॉस्पिटल हेल्थ एडवाइजरी कमेटी एक कमेटी होती है जिसका एक ईशा पार्ट होता है. उस कमेटी के मेंबर्स से मैंने ग्राउंडवर्क किया. ओके, एंड द पॉइंट इज कि फीडबैक सिस्टम बेसिकली जो एग्जिस्ट करता है, आई वांट कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन. ठीक है, अभी क्या है, अभी ऐसे मेल करना है, अभी जो फॉर्म है उसकी लिंक नहीं है HTR पे. बेसिकली एक सिंपल सा पॉइंट है कि HTR पे एक सेक्शन होगा उसमें मतलब Guys, please settle down. गाइस शांत बैठ जाओ यार, सो बोलने तो दो. गाइस सो होने दो यार. Guys, please settle down, please. You can continue with the answer. तो जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ ग्राउंडवर्क किया है कि नहीं किया है. बेसिकली देयर इज अ हॉस्पिटल हेल्थ एडवाइजरी कमेटी. उनके मेंबर्स के साथ मैं बात किया हूँ जिनमें एक अपना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं. सो द पॉइंट इज कि जो फीडबैक सिस्टम है, ठीक है, फीडबैक सिस्टम को जस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इसके आपके साथ इंटीग्रेट करके मान लो आप तब जाके हॉस्पिटल में फीडबैक नहीं दे पाए, हॉस्पिटल फीडबैक रजिस्टर में फीडबैक नहीं दे पाए. ठीक है, ओके, तो हॉस्पिटल फीडबैक रजिस्टर में मान लो फीडबैक नहीं दे पाए, आपके
आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप वापस रूम में जाके भी अपने हिस्ट्री अपने फीडबैक सेक्शन खोल के फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। आपने बात करी इंप्रूवमेंट्स की, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट्स के रिगार्डिंग फीडबैक नहीं मैं बोल रहा हूँ, मान लो ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया गया है। गाइस प्लीज शांत हो जाओ, एक बार सब लोग शांत हो जाओ, बस आंसर देने दो यार, आंसर ही नहीं देने दे रहे हो। पॉइंट है ऐसे मैं बोल रहा था। Nobody will be able to speak, please. ओके, सो इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही थी, राइट। सो ऐसे कुछ बार कई बार ऑब्जर्व किया गया है, जैसे मान लो कोई सी पर्टिकुलर दवाई है, ठीक है। तो कई बार मतलब ऐसा होता है कि एक ही दवाई आपको मल्टीपल मतलब इश्यूज के लिए दी जाती है, राइट। तो फीडबैक में चाहता हूँ कि ऐसा कुछ मतलब ये हो कि अगर ऐसा कुछ रिपीटेडली चीज़ें हो रही है तो अपन फीडबैक में मेंशन कर सके एंड वो डायरेक्टली जो सीएमओ है उनको एक्सेसिबल हो एंड वो उस पर एक्शन ले सके जो भी उनको लेनी है, ठीक है। एंड उसके बाद इसके फीडबैक के साथ साथ मैं एक और पॉइंट एसोसिएट करना चाहता हूँ, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एक पूरा सिस्टम ऐसे ही होगा कि जो अपन मतलब जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो बेसिकली ऑनलाइन जाएगा एंड देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कि कौन से डॉक्टर ने किस दिन किस स्टूडेंट को कौन सी दवाई दी थी, पूरा ट्रैक ऑनलाइन मेंटेन है। सो अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है फीडबैक फॉर्म के थ्रू तो आप एक बार जस्ट उस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो, ओके ये दवाई थी इस बंदे को इस दिन दी गई थी एंड ये डॉक्टर उसमें ये था। तो दैट्स व्हाट आई वाज। For the second question, guys, Guys, please settle down. guys. गाइस अगर किसी ने दोबारा आवाज निकाली बाहर फेंक देंगे, ठीक है। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। दोनों चिल्ला रहे हो तो दोनों के आंसर कैसे सुनोगे तुम लोग? लेट द पर्सन कंप्लीट, उसका तुम मूव कर लेना, कोई सुनिए, लेकिन जब कोई बोल रहा है तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। समझ आ गई सबको? So moving on to the second question, what advantages will e-rickshaws have over the current e-shuttles? Also, what exactly does 3D live feed for tracking of the e-shuttle mean? ओके, सो जैसे आपका क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है मेरे मैनिफेस्टो में मैंने क्या लिखा हुआ है। शटल्स एंड रिक्शास दोनों एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरा चीज, जब मैं ई रिक्शास की बात करता हूँ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ करंट जो ऑटो इंस्टीट्यूट में आ रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जो करंट ऑटो वाले हैं इंस्टीट्यूट में वो काफी मतलब एरोगेंट है, वो इंस्टीट्यूट के अंदर ही घूमना चाहते हैं। सिक्योरिटी का एक रूल होता है 45 मिनट्स रूल, जाकर आपको पता ही होगा। सो बेसिकली 45 मिनट रूल है कंटिन्यूसली वायलेट हो रहा है। If he is attacking, this is really bad. I start interested in why he started attacking. Don't do that. कितनी लास्ट वार्निंग देंगे? सीरियसली आज से ना पैनल कितनी बार आप लोग लास्ट वार्निंग दोगे? ठीक है, काफी बार लास्ट वार्निंग दे चुके हैं। 45 मिनट रूल के बारे में बात कर रहा था। तो पॉइंट इज कि 45 मिनट रूल इज नॉट करंटली बीइंग इंप्लीमेंटेड, ठीक है, ड्यू टू द एरोगेंस एंड ये सब चीजें जो ऑटो वाले कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज कि एक जैसे ई शटल आउटसोर्स की हुई है, ई रिक्शा भी आउटसोर्स की जाएंगी। एक ऑपरेटर होगा, पहले रन में अराउंड 20 से 25 ई रिक्शा इंस्टीट्यूट में चला रहा है, ठीक है। एंड द पॉइंट इज कि उसका कॉस्ट जो है, जैसे अभी कितना होता है 18 रुपीज पर किलोमीटर है, राइट, वो मैं कट डाउन करना चाहता हूँ 10 से 15 रुपए किलोमीटर में, जिससे कि सारे लोग उस चीज को फैसिलिटी को अवेल कर सके, पहली बात। दूसरा कि जो उसमें मैं एक और चीज पुश कर रहा हूँ कि फीमेल ड्राइवर्स एक मैं इंक्लूजन उसमें करना चाहता हूँ कि रात को मतलब अराउंड 30% उसमें फीमेल ड्राइवर्स भी रहेंगे, जिससे मतलब मान लो अगर रात को भी ट्रांसपोर्टेशन तुमको करना है तो 10, 11, 15 सारे लोगों को आराम से कैटर कर लेगा एज डिस्कस विद द रिलेवेंट अथॉरिटी, ठीक है, पहली बात। दूसरी रिगार्डिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको चमका ही दिया है। एंड करंट रिक्शा को रिप्लेस करने से आई मीन कि अब जो बाहर के रिक्शा अब रिक्शा एग्जिस्ट करने के बाद जो बाहर के अंदर आएंगी उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि अब जो अंदर से बाहर जाना चाहते हैं उसको डायरेक्टली वो बाहर लेके जाएंगे, अभी वो इनके पास रिफ्यूज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो दैट्स द पॉइंट। Moving on to Zakir. Zakir, so one of the highlights of your POA is to ensure regular food and hygiene audits. How will this be any different from the current audits that are conducted regarding the same? I'll be precise. करंट सिस्टम में जस्ट जो इशू है वो है टाइमलाइन का। जो रिपोर्ट्स जनरेट होकर आती है काफी डिले होता है, उनमें फॉलोअप्स प्रॉपर नहीं होता है। सो प्लान इज विल बी टेकिंग प्रॉपर फॉलोअप्स मेल सो दैट वी गेट द रिपोर्ट ऑन टाइम एंड विल बी प्रॉपर्ली सर्कुलेटिंग टू ईच एंड एवरी मेस। जो जिस वे में वो होता है देयर इज नो इशू, जिस वे में वो कंडक्ट होता है, बट द इशू टाइमलाइन का है, रिपोर्ट्स आने में काफी डिले होता है। दिस वी विल रेगुलेट दैट।
moving on to the second question. Could you expand more on the idea of the hostel clean campaign and the relevant groundwork done for that? Yes, I have done the relevant groundwork, and the words that I have written, expand and implement, is because the current idea which was there was not so good. Institute authorities are really want to do this, but their idea was redundant in a way. So I have changed that. Just like they wanted to do cleaning of the corridors and the rooms, and then they wanted to be that things wanted to be judged by the wardens and the hall, GSEC, and उसके basis पे वो awards वगैरह देने जाते थे. But this is too difficult and not so good. So we are planning that just like the social bodies and institute की work करती हैं, in the same way we will be cleaning the common areas. It's like a campaign which we do outside the institute and sometimes inside the institute. The same idea will be implemented in the hostels area, and we will be giving the incentives which for the fund will be provided by the institute authorities.